Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. Please subscribe. Dear viewers, today we are going to read about second language acquisition. Acquisition का मतलब है acquire करना या achieve करना. इसे जो है SLA भी कहा जाता है. SLA इसके दो मीनिंग्स हैं. एक तो जनरल सेंस में एक टर्म है that is used to describe learning a second language, or specifically it's the name of the theory of the process by which we acquire or pick up a second language. Let's go to the next slide and read about SLA in detail. It's a sub-discipline of applied linguistics. कि ये एक branch है applied linguistics की. Applied linguistics क्या है? It's the theoretical and empirical investigation of real-world problems in which language is a central issue. Some of the academic fields related to it are education, psychology, communication research, anthropology, and sociology. The central theme of SLA research is that of interlanguage. इंटरलैंग्वेज क्या है? मैं आपको ज़्यादा डिटेल से बताता हूँ. कुछ डिटेल यहाँ पे भी गिवन है कि it's a term for a dynamic language system that has been developed by a learner of a second language who has not become fully proficient yet but is approximating the target language, preserving some features of their first language or overgeneralizing target language rules in speaking or writing the target language and creating innovations. It is idiosyncratically based on the learner's experience with the L2. It's based on the theory that there is a psychological structure latent in the brain which is activated when one attempts to learn a second language. कि उसके नज़दीक जब आप second language सीखते हैं तो इसका स्ट्रक्चर भी जो है वो आपके दिमाग में मौजूद है जो एक्टिवेट हो जाता. और ये आइडिया जो है इट इज़ क्रेडिटेड टू लैरी स्लिंकर जिसने 1972 में ये आइडिया पेश किया था. और SLA जो है ये फिर इस लिहाज से अभी जो मैंने बात की है कि ये सब कॉन्शियस प्रोसेस है एंड इट हैपन्स व्हेन वी फोकस ऑन learning a new language, and it can also be compared with second language learning, which describes how formal language education helps us learn language through more conscious process. कि वो क्या है? conscious process है और ये क्या है? unconscious है. जैसे चॉम्स्की का आइडिया आपने पढ़ा था पहले कि वो ये कहता था कि लैंग्वेज का एसेंशियल स्ट्रक्चर जो है वो यूनिवर्सल ग्रामर की शक्ल में हमारे ब्रेन में पहले से मौजूद है और हम प्रोग्राम्ड हैं. ऐसे ही गैरी लिंकर का ये ख्याल था कि जो सेकंड लैंग्वेज को सीखना है ये भी सबकॉन्शियसली जो है प्रोग्राम्ड है. अब हम आते हैं लैंग्वेज ट्रांसफ़र की तरफ. द लैंग्वेज दैट learner already know can have significant influence on the process of learning a new one. This influence is known as language transfer. कि ज़ाहिर है जब आप दूसरी ज़बान सीख रहे होते हैं तो पहली ज़बान के असरात भी मुरतब होते हैं और इसे हम लैंग्वेज ट्रांसफ़र कहते हैं. The primary factor that drives SLA is the language input that learner receive. कि किस तरह से उसे ज़बान सिखाई जा रही है, क्या सिखाया जा रहा है. Learners become more advanced the longer they are immersed in the language they are learning. कि जितना टाइम उन्हें मिलेगा, जितना एक्सपोजर मिलेगा, उनकी प्रोफिशिएंसी टारगेट लैंग्वेज में बढ़ती जाएगी. SLA can be affected by individual factors such as age, learning strategies and effective factors. कि इसमें जो है इंडिविजुअल फैक्टर्स पे इम्पोर्टेंट है कि लर्नर की उम्र क्या है, वो कितना मोटिवेटेड है, क्या सीखना चाहता है. Now let's go to the next slide and read about a. Richards, whose theories are very important in this regard. British literary critic Ivor Armstrong Richards, pen name Richie. He is considered as one of the founders of school of interpretation known as New Criticism. New Criticism क्या है? It's a post-World War school of
Anglo-American literary critical theory, and it insists on the intrinsic value of a work of art and focuses attention on the individual work alone as an independent unit of meaning. It was opposed to the critical practice of bringing historical data to bear on the interpretation of a work. कि उनके नज़दीक वर्क इटसेल्फ क्या है, वो एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है और उसी का मुतालिया करना चाहिए और उसी को पढ़ के जो है इंटरप्रेट करना चाहिए, और ये जो बायोग्राफिकल डेटा है या हिस्टोरिकल डेटा है इसका टेक्स्ट के साथ कोई लेना देना नहीं है. His books, especially The Meaning of Meaning with C.K. Ogden, कि उसने ये C.K. Ogden के साथ लिखी थी. C.K. Ogden कौन था? ब्रिटिश राइटर और लिंग्विस्ट था. ओरिजिनेटेड बेसिक इंग्लिश, कि उसने बेसिक इंग्लिश का कॉन्सेप्ट मुतारिफ कराया था. बेसिक इंग्लिश क्या है? अ सिंप्लीफाइड सिस्टम ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज इंटेंडेड एज अ यूनिफॉर्म स्टैंडर्डाइज्ड मीन्स ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिकेशन. कि इतनी आपको ज़बान ज़रूर आनी चाहिए कि आप उससे जो है कम्युनिकेट कर सकें. अ पॉइंटेड वर्क ऑन सेमेंटिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म एंड द फिलॉसफी ऑफ रेटरिक प्रूव टू बी फाउंडिंग इन्फ्लुएंस फॉर द न्यू क्रिटिसिज्म. ये किताबें उसने लिखी और ये सेमिनल बुक्स थी और उन्होंने न्यू क्रिटिसिज्म की जो इंटरप्रिटेटिव थ्योरी है उसका आगाज़ किया. इन द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स, co-authored by Richard Ogden and James Wood, A. Richards mapped out the principle of aesthetic reception which lay at the root of its literary theory. In The Meaning and Meaning, a study of the influence of language upon thought and of the science of symbolism, work out the triadic theory of semantics. ये क्या है? इसे हम सेमांटिक्स, ये जो स्टडी ऑफ मीनिंग है इसे सेमांटिक्स कहा जाता है, या इसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ मीनिंग कह सकते हैं, कि या फिर हम कह सकते हैं द स्टडी ऑफ साइन यूजिंग बिहेवियर इन जनरल. और इसमें तीन जो हैं चीज़ें शामिल हैं. एक सिग्निफायर जो फॉर्म है, एक सिग्निफाइड जो कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट जो है स्विस लिंग्विस्ट साशियोर ने पहले पेश किया. तो इसने कहा कि नहीं, इन दो के अलावा तीन हैं ये, इनमें से एक ऑब्जेक्ट कहलाएगा, एक रिप्रेजेंटेमन कहलाएगा और एक इंटरप्रेटेंट कहलाएगा. और ये थ्योरी जो है पियर्स सैंडर्स ने पेश की थी. अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. Finally, in work The General Basic English Dictionary and Times of India Guide to Basic English, Richards and Ogden developed their most internationally influential projects, English Program for the Development of International Language, जिसमें वोकैबुलरी जो है वो 850 वर्ड्स पर मुश्तमिल थी और उनके नज़दीक ये जो है बेसिक कम्युनिकेशन के लिए इनफ थी. Richard believed that if we read poetry and can make sense of it in the degree in which we can order ourselves, we need nothing more. कि उसके नज़दीक यही काफ़ी था कि आप जो है शायरी पढ़ें और उसे समझ पाएँ. He gave his idea on the term new rhetoric. New rhetoric क्या है? It is about how language works, कि ज़बान कैसे ऑपरेट करती है. Meanings are decided by how words are used, और meanings का इन्हिसार भी इस बात पे है कि अल्फाज का इस्तेमाल कैसे किया जाता है. न्यू रेटरिक को हम इस तरह से डिफाइन भी कर सकते हैं कि इट्स अ थ्योरी ऑफ आर्गुमेंटेशन that states that argumentation, whether it be called rhetorical or dialectical कहते हैं ये जिस तरह से questions के ज़रिए जो है डिबेट को जारी रखा जाता, always aims at persuading or convincing the audience to whom it is addressed of the value of the thesis for which it seeks assent. The purpose of all argumentation is to gain or reinforce the adherence of an audience. It must be prepared with the audience in mind. मतलब उसने कहा कि रेटरिक क्योंकि परसुएसिव राइटिंग और स्पीच है, इसका मकसद क्या है? ऑडियंस को कन्विंस करना. तो इसलिए हर राइटिंग का टारगेट क्या है? वो ऑडियंस होने चाहिए और उन्हीं के मुताबिक जो है
लिखा जाना चाहिए। अब हम आते हैं बेसिक इंग्लिश की तरफ। ये उसकी सबसे मशहूर किताब है, अ जनरल इंट्रोडक्शन विद रूल्स एंड ग्रामर्स। बेसिक इंग्लिश इज एन इंग्लिश बेस्ड कंट्रोल्ड लैंग्वेज created by linguist and philosopher Charles K. Ogden as an international auxiliary language and as an aid for teaching English as a second language. तो auxiliary language क्या है? A language which is not the primary or native language of a community, कि मादरी ज़बान नहीं होती. It may refer to an international auxiliary language, a planned artificial language भी हो सकती है, constructed for international communication. जैसे कि एस्पेरेंटो एक मिसाल है, या इंटरनेशनल साइन की जो लैंग्वेज है उनको हम ऑक्सिलरी लैंग्वेजेस कह सकते हैं. ऑग्डन्स एसोसिएट आई रिचर्ड्स प्रोमोटेड इज यूज्ड इन स्कूल्स ऑफ चाइना, कि उसने चाइना में जो है इस टेक्निक को आजमाया भी था दूसरी ज़बान सिखाने के लिए, मतलब इंग्लिश सिखाने के लिए. ऑग्डन अलाउड ओनली 18 वर्ब्स विच ही कॉल्ड ऑपरेटर्स. उसने कहा सिर्फ 18 वर्ब्स हैं जिनका नाम उसने ऑपरेटर्स रखा. ऑपरेटर्स क्या हैं? ये स्पेशल वैरायटी है डिटर्मिनर्स की, जैसा कि इंटेरोगेटिव्स हैं, विच, हु, व्हेन एट्सेट्रा. ये क्वांटिफायर्स हैं जैसे एवरी, सम, मस्ट, नो. ये कुछ एडवर्ब्स हैं, इनको वो ऑपरेटर्स कहता है. उसके नज़दीक इनको सीखना जो है वो ज़रूरी है, मिनिमम जो है कम्युनिकेशन जो है करने के लिए या ज़बान सीखने के लिए. His general introduction says there is no verbs in basic English. बल्कि वो ये तो कहता है कि बुनियादी अंग्रेज़ी में verbs की ज़रूरत ही नहीं है. Ogden wrote in a system of basic English, what the world needs most is about 100 more dead languages and one more alive. Ogden prescribed that only one student should learn an additional 150 word list along 850 basic words for everyday work in some particular field by adding a list of 100 words particularly useful in a general field, e.g. science, verse, business, etc., along with a 50 word list from a more specialized subset of that general field to make a basic 1000 vocabulary for everyday work in life. कि उनके नज़दीक 1000 वर्ड सीखना जो है किसी टारगेट लैंग्वेज का वो काफ़ी है एवरीडे कम्युनिकेशन के लिए. Ogden assumed that any student should be already familiar with 200 international words. Therefore, a first level student should graduate with a core vocabulary of around 1200 words. और देखा ग्रेजुएशन के लिए ये सिर्फ 1200 अल्फाज ही काफ़ी हैं जो ज़बान की बुनियाद है, और इनको सीख कर कोई भी ज़बान जो है वो सीखी जा सकती है. कि फॉरेन लैंग्वेजेस को सीखने का ये जो है तरीका है, इतनी वोकैबुलरी क्या है वो ज़रूर हिस्सा होना चाहिए ताकि आप जो है प्रॉपरली कम्युनिकेट कर सकें. अब हम आते हैं. अकॉर्डिंग टू ऑग्डन, अ रियलिस्टिक जनरल कोर वोकैबुलरी कुड कंटेन 2000 वर्ड्स. The core 850 words, 200 international words इनका हमने तज़किरा किया है, 1000 words for the general fields of trade, economics and science. क्या आप उसकी बुनियादी वोकैबुलरी सीख लेते हैं ज़बान की हर फील्ड के मतलब. His lesser known concept, feed forward. According to Richard's concept of anticipating the effect of one words by acting as our own critic, ये feed forward क्या है कि इसे आई रिचर्ड्स ने 8th मैसी कॉन्फ्रेंस में डेवलप किया था. उसके नज़दीक जो है कि जो प्रैग्मेटिक्स है, इट फोकसेस ऑन द यूज़ ऑफ कॉन्टेक्स्ट टू असेस मीनिंग. तो फीडबैक क्या है? वो रेसिप्रोकल है. द नेसेसरी कंडीशन ऑफ व्हाट द साइबरनेटिक्स एंड ऑटोमेशन पीपल कॉल फीडबैक, कि ये क्या है, एक परसेप्शन है या प्लान है फीडबैक के लिए. कि मतलब आप यही कह लें कि जैसे कि आप जिस टारगेट ऑडियंस के लिए लिख रहे हैं, आपने जो है उनके मुताबिक ही लिखना है, उनको जहन में रख के लिखना है, उनको मद्देनज़र रखना है. तो इसी तरह से हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या जो हमने लिखा है वो ठीक है. और आजकल आपको पता है, आप ये सोशल मीडिया यूज़ करते हैं या मैं ये यूट्यूब यूज़ कर रहा हूँ, तो हम यही फीड फॉरवर्ड के तरीका ही देखते हैं कि किस तरह के लोग हमें देख रहे हैं. एनालिटिक्स
मौजूद होते हैं और उनसे फिर हम अंदाज़ा लगाते हैं कि जो हमारे टारगेट ऑडियंस क्या हैं, हम उन्हें किस तरह से जो है अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो फिर हमें अट्रैक्ट करने के लिए क्या क्या करना होगा। साइबरनेटिक्स आप जानते हैं ना, साइबरनेटिक्स क्या होता है कि ये जो आजकल जो है लैंग्वेजेस का इस्तेमाल है, मतलब ये कह लें साइंस है जो कम्युनिकेशन की, या जो ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम है, चाहे वो मशीन्स में हो या लिविंग बीइंग्स में, उसे हम जो है साइबरनेटिक्स कहते हैं। Richard served as a mentor and teacher of William Ampson and F.R. Lewis. William Ampson from 1906 to 1984 एक पोइट था, स्कॉलर था और क्रिटिक था। ये भी एक मैसिव लिटरेरी फिगर था अपने वक्त का। One who revolutionized our ways of reading a poem. The school of literary criticism, new criticism, gained important support from Ampson's 7 types of ambiguity. A study of its effect and English work जो उसने 1930 में लिखा था कि न्यू क्रिटिसिज्म क्रिटिकल थेरी में ये किताब क्या है, एक सेमिनल बुक की हैसियत रखती है। और F.R. लिविस ये कौन था? इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिक था हु चैम्पियन सीरियसनेस एंड मॉरल डेप्थ इन लिटरेचर, कि वो सीरियसनेस का कायल था कि लिटरेचर को सीरियस होना चाहिए, एंड क्रिटिसाइज्ड व्हाट ही कंसीडर्ड द amateur बेल लेटरिज्म ऑफ हिज टाइम। बेल लेटरिज्म क्या है कि ये आप समझ लें कि इमोशंस का अनड्यू इजहार है। द स्टडी और कंपोजिशन ऑफ एसेज of particularly literary and artistic criticism that are written in it primarily for their aesthetic effect, के मतलब वही जो उनके नज़दीक लिटरेचर क्या है वो सिर्फ एस्थेटिकली प्लीजिंग था, जिसे हम आर्ट फॉर आर्ट से कहते हैं, मगर इसके नज़दीक क्या था कि आर्ट फॉर लाइफ से, कि आर्ट को जो है वो हाईली सीरियस होना चाहिए। रिचर्ड सर्व्ड एज अ मेंटर एंड टीचर ऑफ विलियम एम्पसन एंड F.R. लीविस, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अदर्स हु आर इन्फ्लुएंस्ड आर क्लेंथ ब्रूक्स। ये कौन था? ये भी जो है एक अमेरिकन प्रोफेसर था और क्रिटिक था। इसका वर्क भी जो है न्यू क्रिटिसिज्म के हवाले से इम्पोर्टेंट है, और इसने कहा कि क्लोज रीडिंग और स्ट्रक्चरल एनालिसिस जो है लिटरेचर का वो ज़रूरी है। तो इसकी जो मशहूर किताबें हैं वो है अंडरस्टैंडिंग पोइट्री, अंडरस्टैंडिंग फिक्शन एंड अप्रोच टू लिटरेचर। और एलन टेट ये कौन था? ये भी एक अमेरिकन पोइट, टीचर, नॉवलिस्ट और लीडिंग एक्सपोनेंट था न्यू क्रिटिसिज्म का। कि ये सारे जो हैं आई रिचर्ड्स भी, विलियम एम्पसन भी, F.R. लिविस भी और क्लेंथ ब्रूक्स और एलन टेट, कि ये सब न्यू क्रिटिसिज्म के हवाले से जाने जाते हैं। अकॉर्डिंग टू OED, रिचर्ड कॉइन्ड द टर्म फीड फॉरवर्ड एट द 8th एनुअल मैसी कॉन्फ्रेंस। ये पहले मैं आपको बता चुका हूँ। The 4 kinds of meaning are introduced by Richards. उसने कहा कि मीनिंग 4 किस्म के होते हैं, that is sense, tone, intention और feeling। तो सेंस क्या है कि what speaker or author speaks, ये क्या है? सेंस कहलाती है, कि मतलब what is said ये कह लें। टोन क्या है? it's the attitude towards the audience or the reader, कि स्पीकर या राइटर का ऑडियंस की तरफ क्या एटीट्यूड है। इंटेंशन क्या है? इट्स द राइटर कॉन्शियस और अनकॉन्शियस एम और इफेक्ट दैट ही और शी इज ट्राइंग टू प्रोड्यूस। ये कॉन्शियस भी हो सकता है, अनकॉन्शियस भी, कि वो क्या इफेक्ट क्रिएट करना चाहता है। और फीलिंग क्या है? रेफर्स टू द इमोशन, इंटरेस्ट, विल, डिज़ायर एट्सेट्रा टूवर्ड व्हाट इज बीइंग सेड, कि जो कुछ वो कह रहा है उसके बारे में कहने वाले के जज्बात क्या हैं। अब हम इसके मेजर वर्क्स की तरफ आते हैं, बस उनके नाम पढ़ लेते हैं। मिनिकियस ऑन द माइंड। मिनिकियस क्या है? ये जो है हिस्ट्री ऑफ कंपैरेटिव रेट्रिक स्टडीज़ है, और ये थेरी है ट्रांसलेशन और इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन में, कि ये डेवलपमेंट है रेट्रिक स्टडीज़ की इन द 20th सेंचुरी। बेसिक रूल्स ऑफ रीजन ये दूसरी किताब है। इंटरप्रिटेशन इन टीचिंग, बेसिक इन टीचिंग, ईस्ट और वेस्ट, साइंस एंड पोएट्री, रिवाइज्ड एज पोएट्रीज इन साइंस, कॉलरिज एंड इमेजिनेशन, द जनरल बेसिक इंग्लिश डिक्शनरी अलॉन्ग विद C.K. ऑग्टन, इसका तस्करा भी हमने पढ़ा है। 1930
with total words 850, full title नीचे given है. Let's call it a day. खुदा हाफिज़ till the next